नमस्कार। कोना मनका में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं सुमन द्विवेदी आज आपको ले चलूंगी अध्यात्म की दुनिया में। आमतौर से लोगों की ये धारणा होती है कि आध्यात्मिक रुझान सांसारिक रिश्तों में बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु अध्यात्म का मार्ग कभी इस बात की मांग नहीं करता कि उसके लिए सांसारिक रिश्तों को छोड़ दिया जाए। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तमाम रिश्ते इस बात की मांग अवश्य रखते हैं कि यदि परिवार में रहना है तो अध्यात्म की राह छोड़ दी जाए। भले ही प्रभु श्री कृष्ण ने दोनों ही राहों में संतुलन बनाया। वो एक ओर योगी थे और दूसरी ओर गृहस्थ। प्रश्न है ये कि क्या अध्यात्म के लिए सांसारिक रिश्तों को छोड़ देना चाहिए? मैं कहती हूँ, यदि फूल को खिलना है तो वो बंजर भूमि पे भी खिलेगा, धूल से भरी हुई राहों में भी खिलेगा, वो दूर मानसरोवर में भी खिलेगा और वो कीचड़ में भी खिलेगा, क्योंकि खिलना उसकी प्रवृत्ति है। मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां अत्यंत प्रिय हैं कि मेरी प्रगति अगति का मानदंड बदलो तुम, मैं अभी अनिश्चित हूं। निश्चित और अनिश्चित ये दो स्थिति ऐसी हैं जिसमें मनुष्य जूझता रहता है और अपने जीवन की राह बनाता रहता है। आज हमारे कोना मन की श्रृंखला की एक ऐसी अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके अध्यात्म की राह को चुना है। तो आइए मिलते हैं श्रीमती संगीता रॉय से और सुनते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ये राह कैसे अपनाई, उनके जीवन का आदर्श कौन है और वो यहाँ तक कैसे पहुंची। तो मिलते हैं संगीता जी से। Hare Krishna Suman, Namaste. Today I have come here to share that my mother is my ideal. My parents, they were the best looking couple, both very healthy. I had an excellent childhood until one day, that is on 24th of October 1980, when my father passed away. My mother was only 29 and I was 11, and both my younger sisters 9 and 5. For some time it was like that the world has come for a halt. But my mother, such a courageous lady, she took charge of the family. She was a school teacher and she started working with rupees 400 as a salary per month. I really don't know how did she manage all the things, but we always ate good food and we always wear good clothes. She had to listen to so many social comments as well, like रंगीन कपड़े पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं and all these things. But she never paid attention to all these things, possibly because my mother's mother, that is my Nani, she was a very revolutionary person and she helped Subhash Bose in the struggle for independence. So my mother was also very, very strong. She continued to do all her responsibilities as a father and mother. She would send us to the educational trips, make us participate in all the school functions, which I remember many of my classmates also would not go for the educational trips, in spite of having both the parents. So when I think of it, I really feel that my mother is such a courageous and iron lady who never cared for anything excepting that she wanted that her children to be getting the best and not depriving them from anything what other children are availing. So this is how I have grown up. I have grown up seeing a very strong mother. There are two things
that always my mother used to say, and still she says it. The first is Andhi Aaye Baith Gavaye, and the second is Ekant Anusashit. As a young girl, possibly I did not understand much of it, but with the passing of years, now I have understood, and especially when it has come in my life, when I have faced difficulties in my life, like there was a time when nothing seemed to be going the way I wanted. My marriage fell apart and I lost my daughter also. So it was like I was blaming myself and I was completely lost. At that time, my mother's teaching, Andhi Aaye Baith Gavaye, was really helpful. That she used to say कि जब आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गिर जाते हैं और जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो रह जाते हैं. तो हमें वो काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं और बाकी चीजों को समय पे छोड़ देना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज एकांत अनुशासित. This is the time when I realized that what I really want, and I discovered myself as to who the true Sangeeta is. So my mother's these two teachings have been a real impactful teaching in my life. And then I cannot forget, Urvashi Auntie's one saying in one of the meetings when I was a teacher in study hall. Then she said that being a misfit is not a disqualification, rather it's a qualification to grow. And that was the time when I started feeling that yes, things are not happening the way I want. Possibly there are certain things which is wrong in me. And then I realized Urvashi Auntie is saying that being a misfit. So that is how I started working on myself. I came to know who the true Sangeeta is, and that's how today I am where I am. Thank you so much, Suman, for inviting me in Man Ka Kona. This Man Ka Kona is a very, very prestigious stage. It has been honored by the CEO of Study Hall, Dr. Urvashi Sahani, then Rekha Dondial Auntie, Saddo Appa, Shashi Auntie, the principal of Prep School, Sangeeta Auntie, Usha Manocha Auntie, and today I am also here. So a big thank you to my mother who has made me what I am, and thank you to Urvashi Auntie for making me the person who I am. Thank you so much, Suman, for inviting me here. Hare Krishna. संगीता जी कहते हैं जीवन एक कुरुक्षेत्र है. इसमें युद्ध और संघर्ष निरंतर चलता रहता है. जीवन के इस कुरुक्षेत्र में अनुशासन विहीन होकर जीना निरर्थक है. और आपने अभी एकात्म अनुशासन की बात की है. जरा इस पर प्रकाश डालिए कि क्या होता है एकात्म अनुशासन और ये युवा पीढ़ी के लिए कितना अनिवार्य हो सकता है. प्रश्न एकांत अनुशासित बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहती भी थी कि इस विषय में मैं बच्चों से बोलूं कि बच्चों ये एकांत अनुशासित जो शब्द है, एकांत का मतलब अकेले और अनुशासित मतलब अनुशासन में रहना. तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा अभी का उदाहरण दे रही हूँ. जैसे कि सभी को मालूम है कि सुशांत केस में क्या हो रहा है. जो कुछ भी कार्य हुआ था वो एकांत में हुआ था, लेकिन क्या वो एकांत में रह सका? ऐसा कभी नहीं होता है. जो चीज हम करते हैं वो एक बीज की तरह होता है और वो अपने समय पे बाहर आता ही है. तो एकांत में जब हम रहते हैं तो इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना के समय सभी बच्चे जो है मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं. माता पिता ये सोच रहे हैं कि बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं. बेशक आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपको इस बात का ध्यान रहे कि पढ़ाई करते करते क्या कोई ऐसा कार्य तो आप गलती से नहीं कर बैठ रहे हैं. ये अभी आपके लिए समझना मुश्किल होगा कि इस कार्य का परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन परिणाम अवश्य निकलता है. वो हम सभी सुशांत केस से या इसके पहले जितनी भी चीजें हुई हैं,
उससे हमें ये अनुमान लग सकता है बहुत ही आसानी से कि कोई भी कार्य छुपता नहीं है। और अगर हम हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहना चाहते हैं, तो अपने एकांत को हम नियंत्रित कर ले, अपने एकांत को हम अनुशासित कर ले। जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जब हम अकेले रहते हैं उस समय जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा रियल सेल्फ होता है, और जो हमारी आत्मा है वो एक भगवान का बनाया हुआ सीसीटीवी कैमरा है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, और वो कैमरा हमें सुरक्षा भी देता है और रिकॉर्डिंग भी करता जाता है। तो यही अर्थ है एकांत नियंत्रित या एकांत अनुशासित। संगीता जी, आपने अध्यात्म को शिक्षा से भली भांति जोड़ा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को एक सीख मिल सके, संदेश मिल सके। एक शिक्षिका होने के नाते आपकी दिनचर्या क्या है, जरा बताइए। My day begins with the chanting of Mahamantra in the Brahma Muhurt. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. After that, the normal routine work, and then I'm in school. Along with the teaching of my syllabus, I incorporate the teachings of Bhagavad Gita. Human life is got after 84 lakhs of species, and we need to understand that we are not our body and we are the spirit souls. And this can be understood very beautifully with the example of all the electronic gadgets like TV, fridge, air condition, mixie, tube light and others. All these things, all these electronic gadgets, they are run with the same electricity. But externally, all these are different and having different functions. In the same way, all human beings, all other creatures, they are externally different, but internally we have the same soul, the same part and parcel of Krishna, and this is only explained in Bhagavad Gita. Once we understand this, so the feeling of oneness develops, which is very, very important for a happy, healthy and a secure society. हरे कृष्णा। आपने भगवत गीता का गहन अध्ययन किया है और उसे अपने जीवन में उतारा भी है। आप हम सबको बताइए कि कैसी रही आपकी गीता यात्रा। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी को भगवत गीता से मिलवाती हूँ। भगवत गीता श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हुए वचन है। 5000 वर्षों पहले श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र और शिष्य अर्जुन को भय और संशय से मुक्त करने के लिए जो ज्ञान दिया था वह ग्रंथ है भगवत गीता। अर्जुन अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उन्हें युद्ध में परास्त करना असंभव था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उन्होंने अपने समक्ष अपने स्वजनों को, अपने बांधवों को देखा और युद्ध के परिणाम के विषय में जो कि मृत्यु होती है सोच के वे भय से कांपने लगे और वे निराश होकर श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर पंचभूत से बना है। पंचभूत अर्थात पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये सभी अस्थायी तत्व हैं और नश्वर हैं, इसीलिए शरीर भी नश्वर होता है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा मुझ अविनाशी का अंश है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ममेव अंश जीवेर लोक, अर्थात समस्त प्राणी मेरे ही अंश है।
और श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयान्तपि न शोष्यति मारुतः, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई शस्त्र से आत्मा को काटा जा सकता है और ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है और ना जल आत्मा को गीला कर सकता है और ना ही हवा आत्मा को सुखा सकती है। इस ज्ञान को पाकर अर्जुन अपने सभी दुखों से और भय से मुक्त होकर और पूर्ण विश्वास और साहस के साथ युद्ध करके वे विजयी हुए। अगर हम भी अपने जीवन रूपी युद्ध में विजयी होना चाहते हैं तो हमें भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवद गीता मूल रूप में संस्कृत में थी, जिसको पढ़ना और समझना अत्यंत कठिन था। इसलिए श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने भगवद गीता को हिंदी एवं अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि हम भारतीय भगवद गीता का अध्ययन करके उसका लाभ ले सके। लेकिन प्रभुपाद इतना निराश हुए कि भारतीय तो भगवद गीता पढ़ने में रुचि ही नहीं लेते हैं और विदेशियों की नकल करना चाहते हैं। तब श्रील प्रभुपाद 1965 में 70 वर्ष की आयु में जलदूत नामक मालवाहक जहाज से वो अमेरिका गए और मात्र 12 वर्षों में उन्होंने पूरे विश्व में भगवद गीता का प्रचार किया और 108 राधा कृष्ण के भव्य मंदिरों का उन्होंने स्थापना किया। ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रभुपाद श्री कृष्ण के सखा हैं, इसीलिए प्रभुपाद ये असंभव कार्य को इतनी सरलता से कर सके। प्रभुपाद अत्यंत संवेदनशील और दयालु हैं। वे चाहते हैं कि हम सभी भगवद गीता का अध्ययन करें और अपने अपने जीवन में निर्भय होकर के सफल हों। श्रील प्रभुपाद इज माई दीक्षा गुरु and he has given me the Diksha of Mahamantra, and I am learning Bhagavad Gita and Bhagavatam under the able guidance of Hari Mohan Prabhuji, who is equally compassionate and kind like Prabhupada. He is the disciple of His Holiness Radha Govind Maharaj, who is a senior disciple of Srila Prabhupada. Today I wish to thank my dear friend Mukul Mishra, who suggested me to listen to Bhagavad Gita lectures of Mrs. Jayaro. That's how I got introduced to Bhagavad Gita. And then I wish to thank my principal, Dr. Sadhna Srivastava, who trusts me immensely and supports me in the preaching work of Bhagavad Gita along with my teaching work in my institution, Yoganand, Swami Yoganand Palika Inter College. And I wish to thank my colleague, Mrs. Meera Dixit, who gave me the first ever Bhagavad Gita of my life, without which I wouldn't have known what Bhagavad Gita is. So I thank everyone for helping me to have the knowledge of Bhagavad Gita, and I wish to fulfill the dreams of my Guru Maharaj, Srila Prabhupada, to spread the knowledge of Bhagavad Gita. I request everyone to take Bhagavad Gita and read it so that we can also be successful and fearless like Arjun. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आज आपसे ये मुलाकात बहुत सारगर्भित रही। मुझे लगता है कि नियम और नियंत्रण, इन दो शब्दों को यदि हम सब अपने जीवन में उतार लें तो हम सभी को अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। पुनः धन्यवाद।